With the fourth sum for the exercise, okay, that it is said that there is a pencil holder, ऐसा कुछ pencil holder है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड 10 सेंटीमीटर है, हाइट 3.5 सेंटीमीटर है. उसके अंदर क्या है ये, दिस आर सम होल्स, देर आर सम होल्स क्रिएटेड. ये जो पर्पल कलर के तुम्हें दिखेंगे ये क्या है, होल्स है. तो ये होल्स क्या है जिसमें पेंसिल तुम क्या कर सकते हो, ऐसे अटका के रख सकते हो. जैसे स्टैंड, पेंसिल स्टैंड है ये, तो एक वुडन का ब्लॉक है. सो ये पर्पल वाले जो है खड्डे हैं. So what you are supposed to find is, you are supposed to find the volume, you are supposed to find the volume that is of the block after removing this whatever जो भी ये खड्डे हैं, after removing this खड्डे, whatever the volume remains, you need to find the volume of the wooden block. So what you need to find is volume. So volume of entire block, volume of entire block is nothing but volume of cuboid. ये क्यूबॉइड में से क्या करूँगा मैं, माइनस से 4 खड्डे तो 4 टाइम्स से वॉल्यूम ऑफ कौन करूँगा, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, ये ऐसे करूँगा. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, and 4 times 1/3 pi r square into h. What is length, 15 into 10 into 3.5. okay, minus 4 into 1/3 into 22/7 into radius कितना है, 0.5 है. okay, radius is 0.5. so 5/10 into 5/10 into height, how much, 1.4. correct, height is 1.4. so 15, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 into 35. okay, minus 4 into 7 1 time, 7.2 times. okay, what else can be done, it is 4 into 1/3 as it is into 44 into 0.2 is 0.44, 4.44, and 5 का square is 25, 25 by 100, 25 100 is nothing but, it can be written as like this only, that is 5 into 5, 0.25 by 100. so it is going to be 0.25 only, right? Now what we are supposed to do is, we are supposed to solve this. now what is 15 into 35, 15 5 is 125, so 75, 5 7 carry, 15 3 is 45, 45 plus 7 is 52, so it is going to be nothing but 525 minus 4. what is 44 into 0.25, 0.25 means 1/4, and 44 में से 1/4, 44 का 1/4 is 11, so 1/3 into 11. okay, so 525 minus what is 11. okay, so it is going to be 1.1, correct. so you need to solve this. 4.4, so 4.4 divided by 3 it is going to be, so 525 minus 3 ones are 3, 3 ones are 3, carrying 1, 3 fours are 12, remaining 2, 6 are, so 1.46666 it will be there, so I can write it as 1.46667, so it can be written as 525 minus 1.47 only. so it is going to be 525 minus 1.47 is 100, 100 minus 47 is nothing but 53, it is going to be 0.53, and 525 minus 2 is going to be 523, so 523.53 centimeter cube. This is going to be the approx value, not the exact value. This is going to be approx. It may be around this only somewhere. Getting?
So this is the solution, volume of the cube, wooden block that is required. Now in this sum, this is now the fifth sum. So अभी फिफ्थ सम में क्या बोला गया है कि a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, is dropped into a vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot drop into the vessel. ओके, सो क्या बोला गया है कि ये कुछ तो एक कोन है, इन्वर्टेड कोन है, जिसको टॉप तक क्या भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है. अब क्या हुआ, मैंने मस्ती में क्या किया, लेड शॉट्स इसके अंदर डालना चालू किया. ये जो लेड का बॉल है, जैसे तुम बोलते हो वो गोटी बोलते हो तुम, गोटी. सो दिस इज नथिंग बट दैट गोटी. ओके, सो इसको तुमने क्या कहना है, इसमें फेंकना चालू किया. सो तुमने एक सर्टेन नंबर ऑफ, एक एन अमाउंट ऑफ क्या किया, लेड फेंका, एन नंबर ऑफ लेड फेंका बॉल, जो क्या हुआ सर्टेन 40, 50, 60 कुछ भी हो सकते हैं. उसको फेंकने के बाद क्या देखा कि 1/4 ऑफ द वाटर इज बिन रिमूव्ड. मतलब 1/4 ऑफ द, ये जो कोन है वो 1/4 में इसका जो पूरा पानी है उसका वो निकल चुका है. 1/4 ऑफ द वाटर इज बिन रिमूव्ड. सो तुमको फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ तुमने ये लेड शॉट्स अंदर डाला, कितना नंबर ऑफ तुमने क्या किया, लेड शॉट्स अंदर डाला, जिसकी वजह से 1/4 ऑफ वाटर निकल गया. तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया, उसको ऐसे रख दो. बाद में क्या करो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फाइंड आउट करो. फिर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फाइंड आउट करो. तो एक स्पीयर का वॉल्यूम तुम्हें पता चल जाएगा, एक स्पीयर का तुम्हें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम. अभी क्या करोगे, इसमें से 1/4 पानी निकल रहा है. सो इसका जो भी इसका वॉल्यूम होगा उसका अपन 1/4 वॉल्यूम, सपोज 100 है इसका वॉल्यूम, तो 1/4 कितना होगा, 25. अब 25 को हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे. जैसे मान लो कि मैंने 15 एप्पल, मैंने कुछ तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्पल खरीदे जो 15 रुपए के थे, ठीक है, और एक एप्पल का कॉस्ट था 15. सो मुझे नंबर ऑफ एप्पल निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, 15 डिवाइड बाय 1 करूंगा. दैट मीन्स आई विल गेट द नंबर ऑफ एप्पल दैट इज 15. सेम 1/4 का कुछ तो वैल्यू होगा, उस 1/4 के वैल्यू में से क्या करूंगा मैं, लेड का डिवाइड करूंगा. सो जितना रहेगा डिवाइड बाय उतना नंबर ऑफ मुझे लेड शॉट्स जो अंदर पानी में मैंने गोटी फेंकी हो, गोटी मुझे पता चल जाएगी. गॉट इट. सो आई विल स्टार्ट दिस सम नाउ. सो what we are going to first find is the for the cone. So for cone, वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट. सो 1/3 इंटू पाई. अब पाई क्या करूँगा, पाई एज इट इज रखूँगा. अब क्यों एज इट इज तुम्हें आगे बताऊँगा मैं. सो का रेडियस कितना है, 5 है. 5 इंटू 5 इंटू हाइट 8 है. ओके. सो ये कितना हो जाएगा, 5 है तो 25. 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 8 इज 200. तो 200/3 पाई. अब ये मुझे मिल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन. अब ये मुझे क्या है, मिल गया. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई एज इट इज रखेंगे, आर क्यूब 0.5 क्यूब. ओके. सो 4/3 0.5 का क्यूब कितना होता है, 0.125. एंड 0.125 इंटू 4 इज हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 0.5. So it is going to be 0.5/3 pi. It is nothing but it is going to be 0.5/3 pi. So 0.5 क्या होता है, 1/2. So it can be written as pi/6 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब ये डालना ना भूले वरना हमारी मार्क्स चले जाएंगे. Now what we need to find is
वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out, volume of water flows out is nothing but 1/4 of 200 by 3 pi. This is given, so 50 by 3 pi बराबर 50 by 3 pi. Now number of lead shots dropped in vessel is how much? Volume of water flows out divided by volume of one lead shot. Correct? Volume of one lead shot. A volume of water flows out is 50 by 3 pi divide by, what is volume of one lead shot? It is pi by 6. It is nothing but pi by 6. So what is A upon B upon C upon D? It is nothing but what is A upon B upon C upon D? So in short, it is nothing but A into C upon A into D into B into C. So सेम थिंग अपन वही करेंगे, 50 पाई अपॉन, ये किस फॉर्म में है, 50 पाई अपॉन ये मेरा A है, लेट्स से दिस A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D मान लो. सो आई कैन राइट इट एज 50 पाई अपॉन 3 एज इट इज इंटू 6 अपॉन pi. So pi cancel, 1 za 2 za, so it is nothing but total is 52 za is 100, so 100 shots. So number of lead shots dropped in vessel is nothing but it is 100. अब ये क्या है, अभी समझ रहे हो हमने पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पाई क्या हो रहा है, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे और यहाँ पे पाई क्या हो रहा था, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था, इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया. स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो. गॉट इट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. सो दिस सिक्स सम इट इज टोल्ड ओवर हियर इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर. ओके, which is surmounted on another cylinder of height 16 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube iron has approximately 8 grams of the mass. Okay, अब ये solid iron pole है, तुम्हें क्या करना है, बोला है solid iron pole consists of cylindrical of height ये so and so which is surmounted on another cylinder of height here. Find the mass of the pole given that 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयन का वजन कितना होगा, 8 ग्राम बाय मास होगा, 8 ग्राम मास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, 8 ग्राम. सो हमें कितना करना है, टोटल पोल की हाइट क्या करनी है, हमें पोल का मास हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना. सो व्हाट वी कैन राइट इज लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर सो स्मॉल आर लेंगे विच इज 8 सेंटीमीटर एंड लेट द रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इट्स का क्या है 12 सेंटीमीटर है. ओके, ये रेडियस हमें क्या हुआ है, दिया गया हुआ है, तो हम स्मॉल आर कैपिटल आर करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो छोटा बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जो छोटा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एंड दोनों सिलेंडर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. सो दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा. फिर टोटल वॉल्यूम को क्या कर लेंगे हम 8 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ lower cylinder. Okay, volume of upper cylinder plus volume of lower cylinder. What is the volume of upper cylinder? Pi r square h. And what is volume of lower cylinder? Pi capital R square h. pi की वैल्यू रखते फिलहाल एज इट इज 3.14. लेने बोला तो बाहर ले लेते हैं. आर स्क्वायर, रेडियस इज 8 का स्क्वायर इज 64 इंटू हाइट इज 60 प्लस रेडियस कितना है 12. व्हाट इज रेडियस? इट इज 12. तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू हाइट इज 220. ओके, सो 6 4 जा, ये 0 तो एज इट इज रहेगा. 6 4 जा 24, कैरी 2 6 का 36 38 3840 3840. नेक्स्ट 22 4 is 88, carry 8. 22 4 is 88. 88 plus 4, 88 plus 8 is 96. 88 plus 4 is 96. 22 1 22 plus 9 is 32. So 32680. Now you need to add this. So 0 plus 0 is 0. Uh, 8 plus 4 is 12. Carry 1. 8 plus 6 14 plus 1 5. 15. Carry again 1. 3 plus 2 is 5. Oh wait, what we can do is we'll just do over here. It is 32680 plus 3840. 0 12. 6 plus 8 is यहाँ पे 1 आएगा. Here it will be 1. क्योंकि 9 22 1 is 21. 21 plus 9 is 31. 22 plus 9 is 31. So 1. Okay, so it is going to be 8 plus 4 12, 6 15, carry 1 5, 35520. So it is 35520 into 3.14. You need to multiply this. So in short it is going to be, I am just doing this on Calci, you have to do it by yourself. So 35520 into 3.14, it is around 11,532.8. Okay, this is the volume of centimeter cube. This is the volume of solid. Now I am supposed to find the mass of solid. So mass of solid is nothing but 11,532.8 into 8. Why? Because since it was given that mass of 1 cm cube equals to 8 grams. तो 1 cm क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतने cm क्यूब का कितना होगा 8 से हमको मल्टीप्लाई करना है सिंपली 8 grams. So it is going to be 8 8s are 64, carry 6, 8 2s are 16, 16 plus 2 is 22, 8 3s are 24, 24 plus 2 is 26, 8 5s are 40, 40 plus 2 42, 8 1s are 8 plus 2
plus 4 12, 8 ones are 8 9, 8 ones are 8, this much gram. अब ग्राम को kg में कन्वर्ट करना, सिंपली डिवाइड बाय 1000, सो इट इज गोइंग टू बी, अब 0.4 आएगा, एंड डिवाइड बाय 1000, सो इट इज गोइंग टू बी 892.2624 kg, since 1000 gram equals to 1 kg, correct? So this is the mass of the solid that is required. Got it? So we'll move on to the next sum.